सो दिस इज अ बॉडी बिल्डर फ्रॉम घाना, वेस्ट अफ्रीका। इनका नाम है सैम्यूल कुलबिला और इनकी उम्र तकरीबन 30 साल है। ये पॉपुलर ऐसे हुए कि ये किसी ऐसे जिम में जाके ट्रेनिंग नहीं करते कि जहाँ पे रबर कोटेड प्लेट्स हों, स्टील बारबल्स हों या एक्सपेंसिव मशीनरीज हों। ये एक ऐसे जिम में ट्रेनिंग करते हैं जहाँ स्टील प्लेट्स नहीं होती, बल्कि गाड़ियों के रस्टेड रोटर्स, मेटल स्क्रैप बारबल्स और सीमेंटेड डंबल्स होते हैं। और जबकि स्क्वाट रैक भी लकड़ी की होती है। और ये सब इसलिए है बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड द जिम फी। ना सिर्फ ये, बल्कि ही कैन नॉट अफोर्ड टू ईट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट स्टिल ही लुक्स लाइक दिस। एंड हियर इज अ वीडियो ऑन सैम्यूल जिसका टाइटल है सैम्यूल अफ्रीकन बॉडी बिल्डर, नो एक्सक्यूजेस। About a particular athlete from Ghana, Samuel Kulbila. How does he train? What does he eat? What does he do for a living? And what are his goals? Homemade equipment, natural food, no trainers, no steroids. Never knows exactly what weights he lifts. So he never knows exactly how much he lifts. Samuel is a simple African guy, but he is a very popular athlete on social media. His workouts have interested over 300,000 people on Instagram. The bodybuilder looks impressive, but his training conditions and nutrition don't make progress easy. Samuel is 29 years old, weighs about 200 pounds, and is 5 foot 8 inches tall. Close to 200 pounds at 5 foot 8 are the body stats of golden era bodybuilder Frank Zane. Samuel doesn't split muscle groups in his training and trains each muscle group at least once a week based on a pyramid principle. Sometimes he shocks his body by working out twice in a day. When there is some work to do on construction sites or as a bouncer at nightclubs, he can pause his training. Samuel doesn't care about lifting records. He just doesn't know the exact weights he is working with, but he still has excellent results. And again, he doesn't know how much he lifts. Although he's not a newbie, but still, he progresses. Samuel is a huge fan of Simeon Panda and Ulysses Jr., who call themselves natural bodybuilders. So he's a big fan of Simeon Panda and Ulysses, who claim to be natural bodybuilder. अगर ये natural है, तो सोचो unnatural क्या होगा? Samuel says he has never used steroids because his goal is to become the best natural bodybuilder in the world. As Samuel says, look at athletes from Africa. That's where natural monsters live. सो सैम्यूल का मानना है कि जितने भी नेचुरल मॉन्स्टर्स होते हैं वो आपको अफ्रीका में मिलते हैं, जिनको आप और हम अक्सर जेनेटिक एलीट्स कहते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि जितने भी हाइपर एलीट्स हैं वो आपको वाकई में अफ्रीका में मिलते हैं, या फिर इज देयर एनीथिंग फिशी आउट देयर? He also says that he doesn't have money to buy steroids, and he barely has enough money to buy food. Kulbila admits that he doesn't count calories and doesn't know how much protein and carbs he eats. He eats rice, porridge, beans, eggs, fresh fish, and sometimes bananas and other local products. He doesn't have enough money for meat, so 3 or 4 low-cost meals a day is his diet. As for sports nutrition, once a friend gave him creatine, vitamins, and fish oil, and that was the first and last time Samuel tried them. So Samuel doesn't know how much he lifts. He doesn't know how much he eats in terms of calories. He doesn't know how much protein he eats. He only used creatine and multivitamins just once, and there we have the real muscle monster. I mean, dude, maybe he's a genetic elite, we don't know yet. According to Samuel, his progress isn't just genetics, but is the result of hard work. His body is the result of a combination of disposition and conditions, multiplied over time, that he spent on his progress. In my opinion, Samuel has pretty good genetics, especially when it comes to muscle building. You can take everything, and I mean every compound on earth, and you cannot even come close to what Samuel looks. In fact, not many people are there on earth जो कि even on everything, अगर वो सब कुछ भी इस्तेमाल कर लें किसी भी डोजेस पे, वो सैम्यूल के in terms of muscle mass करीब भी नहीं आ पाएंगे. Why? Genetics. अब होता क्या है कि अगर कल को लेट्स से सैम्यूल कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, मिसाल के तौर पे 10 लाख लोगों को, और वो कहता है कि भाई हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से आप मेरी जैसी फिजिक बना सकते हो, लेट्स से अगर वो ये कहता है, सो ट्रस्ट मी, आप उसकी बात पे यकीन करोगे, आप उस पर भरोसा करोगे. वाई? बिकॉज
उसके पास अपनी बात को वेटेज देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए 200 पाउंड की फिजिक है। यानी जब एक बंदा 200 पाउंड के करीब करीब है और वो कह रहा है कि जी हार्डवर्क से ये चीज अचीव हो जाएगी, तो आप यकीन करोगे सिमिलरली जब लोग सप्लीमेंट्स बेचते हैं, एक मसल मॉन्स्टर खड़ा होता है, देखो ये मास गेनर ले लो या ये वे प्रोटीन ले लो, आप यकीन करते हो ना, नैरेटिव बिल्डिंग जिसको आप कहते हो। लेकिन हमें ये चीज पता है कि जब आप इस दुनिया में हो तो हर चीज के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी भी अस्पताल में, हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आज से प्रैक्टिस करनी है। ऑफ कोर्स नॉट। सालों पढ़ेगा, हाउस जॉब करेगा, डिग्री लेगा एंड देन ही इज एलिजिबल टू डू इट। या फिर अगर किसी को जहाज उड़ाना है, असली वाला, कागज वाला नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है वो एविएशन में घुस गया कि भाई मुझे जॉब दो, मुझे जहाज उड़ाना है। पढ़ेगा, डिग्री लेगा, ट्रेनिंग करेगा एंड देन ही इज एलिजिबल टू डू इट। यानी कि रिगार्डलेस कि आप कितने ही मोटिवेटेड क्यों ना हो, रिगार्डलेस कि आप कितने ही हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल क्यों ना हो, आपको अगर इस दुनिया में कुछ चीजें अचीव करनी है सो यू हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स। लेकिन जब आप मुझे ये कहते हो कि भाई सैम्यूल डजंट नो हाउ मच ही लिफ्ट्स, सैम्यूल डजंट नो हाउ मच ही ईट्स इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, ही डजंट नो कि कितना प्रोटीन वो दिन भर में कंज्यूम कर रहा है, तो चले मैं मान सकता हूं कि हो सकता है ट्रेनिंग में वो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहा हो, आइडियली कर रहा हो, कैसे नहीं पता, लेकिन चले वो कर रहा है, अज्यूम कर लेते हैं आइडियली वो कर रहा है। लेकिन ही इज ऑप्टिमाइजिंग हिज न्यूट्रिशन एज वेल, इन एडिशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी आप मुझे ये कह रहे हो कि ये सारे के सारे पैरामीटर जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ट्रेनिंग भी है, न्यूट्रिशन भी है, ये सारे के सारे उसको नहीं पता वो कितनी अमाउंट में या किस कैपेसिटी में कर रहा है, बट स्टिल आइडियली वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही हैं एंड दैट इज व्हाई ही इज ग्रोइंग। सो ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट। Of course, as a newbie, even if you're not doing proper training, if you're not even proper eating, you can still grow, क्योंकि बॉडी को जैसे ही एक थोड़ा सा ट्रेनिंग स्टिमुलस मिलता है वो ग्रो करती है। So yes, as a newbie, you can gain muscle. But even if you're like a genetic elite और आपको थोड़ा टाइम हो चुका है and you're not following proper nutrition or proper training, in fact, you don't know the numbers you are following. So these things cannot ideally make you a 200-pound muscle monster. यानी कि even if you are a genetic elite, you need to follow certain protocols. मिसाल के तौर पे आप देखें क्रिस बम्स्टेड, I say he is 1 in a billion genetics. लेकिन क्रिस बम्स्टेड भी क्रिस बम्स्टेड उस वक्त बना जब उसने अपनी ट्रेनिंग को, अपने न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज करा, प्लस उसने अपना जो सप्लीमेंट्स वाला जो एरिया है, दैट इज एनाबॉलिक्स, उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, तब जाके वो स्टेज पर पहुंचा। अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई जस्ट लाइक क्रिस बम्स्टेड, ही इज 1 in a billion genetics, बिकॉज यस, व्हेन यू हैव लाइक 1 in a billion genetics, आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हो। चलो अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, ही इज 1 in a billion genetics, सैम्यूल हैज ऑल्सो कंपीटेड इन नंबर ऑफ बॉडी बिल्डिंग शोज। गाना में, वेस्ट अफ्रीका में उसने काफी सारे बॉडी बिल्डिंग शोज में कंपीट किया है। तो अगर इस लॉजिक से मैं कहूं कि सैम्यूल इज नेचुरल एंड ही इज 1 in a billion genetics, तो इस पोस्ट में हो सकता है कि जो कंडीशन सैम्यूल के साथ हो बाकियों के साथ भी हो। सो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज एथलीट्स, ऑल ऑफ दोज बॉडी बिल्डर्स, मे बी दे आर ऑल नेचुरल एज वेल। इनफैक्ट सिमियन पैंडा एंड यूलिसिस, हो सकता है कि वो भी नेचुरल हो। काई ग्रीन ने आज तक एक्सेप्ट नहीं करा कि ही यूजेस एनाबॉलिक्स, so maybe you can say कि yes, Kai Green is also natural. so यही नैरेटिव मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि देखें, जब आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आपको पायलट बनना है, तो आपको उसके सारे प्रोटोकॉल्स पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके आप पायलट बनोगे। सिमिलरली अगर आपने स्टेज कंपीट करना है, सो यस, एज अ बॉडी बिल्डर आपको वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक रीजन इस वीडियो को बनाने का और वो ये है कि किस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर इसी वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, देयर यू गो, इफ ही हैड मनी फॉर स्टेरॉइड्स, ही श्योरली वुडंट बी वर्किंग आउट इन दैट जिम। अच्छा, फिर थोड़ा सा हम चलते हैं, ओके, दिस वन, दिस इज प्योर अफ्रीकन स्ट्रेंथ. And so this is proof how African strength is most superior strength in the world when gets so strong without steroids.
And we have this one, natural bodybuilder with the best physique I have seen in a while. Yani people tend to buy this narrative. I'm not hating on Samuel. I mean, we cannot take away the hard work that he has done. Even अगर आप Reddit की काफी सारी पोस्ट चेक करें तो वहां पे आपको पता चलेगा why people think कि this guy is natural is the fact कि पहली चीज वो रहता है वेस्ट अफ्रीका यानी गाना में, जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, यानी पीपल आर लाइक बेयरली एबल टू मेक अप टू देयर फूड. ठीक है, एक ये नैरेटिव बनाया गया है. तो जाहिर सी बात है जब वहां पे पॉवर्टी इतनी ज्यादा है तो ऐसा कैसे हो सकता है वहां पे टेस्टोस्टेरोन और एनाबॉलिक्स मिलते हो, यानी कि वो गियर कैसे अफोर्ड करेगा. इट इज लाइक अ लग्जूरियस स्टफ. शायद आप लोगों में से बहुत से लोग ये जानते हो कि जितने भी न्यूली अफेक्टेड HIV या स्लैश एड्स पेशेंट्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ देम आर इन अफ्रीका. 2/3. अब ऐसा है कि बहुत से लोग वहां पे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स लेते हैं. ऑफ कोर्स फिर दुनिया भर से लाइक एड्स भी वहां पे जाती हैं. सो वहां वो लोग क्या करते हैं, बिकॉज यस एक पॉवर्टी तो फैक्टर है ना, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और उन ड्रग्स को वो मार्केट में जाके इनफैक्ट ब्लैक मार्केट में सेल कर देता है. अच्छा जी. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ दोज ड्रग्स लिस्ट. व्हाई? बिकॉज दे प्रिवेंट मसल लॉस. अब सवाल ये है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और HIV का क्या ताल्लुक है. इस चीज के लिए मैं आपके सामने कुछ पब्लिकेशंस रख रहा हूं, जैसे कि द यूज ऑफ एनाबॉलिक एजेंट्स इन HIV डिजीज. आप देखें, सेकंड लाइन से पढ़ना शुरू करें. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड अदर एजेंट्स आर फास्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर HIV डिजीज, गेनिंग एक्सेप्टेंस इन रिवर्सिंग लॉस ऑफ लीन बॉडी मास, इंक्रीजिंग मसल स्ट्रेंथ, improving sexual functioning and appetite and creating a general sense of well-being. अच्छा, फिर एक और पब्लिकेशन है, decreases in energy, sense of well-being, libido, muscle strength and muscle mass occur often in patients who have chronic diseases such as HIV infection. यहां पे आए आप. In HIV infected hypogonadal man, administration of testosterone appears to increase fat-free mass, muscle mass and quality of life, यानी increase libido, erectile function and sense of well-being. Similar anabolic steroid hormones appear to increase lean body weight and decrease fat content. अच्छा, फिर आखिर में ये मेंशन करते हैं appropriate doses of the various preparations of testosterone and anabolic steroids have not been determined. Of course ये चीज person to person vary करती है. And then we have another publication saying the use of testosterone in AIDS wasting syndrome. AIDS wasting syndrome is a complication of advanced HIV disease characterized by loss of lean body mass. Studies have shown that more than half of male AIDS patients have low testosterone levels, and increased AIDS severity is correlated with increases in the presence of hypogonadism. Patients receiving testosterone experience significant increases in muscle and lean body mass as well as improved quality of life, appearance and well-being. So if you are trying to argue कि सिंस अफ्रीका और इनफैक्ट घाना इज अ प्लेस जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और वहां पे इतने एक्सपेंसिव ड्रग्स नहीं मिलते, सो इट्स ऑल अ बंच ऑफ BS. इट डजंट हैपन. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग. एंड नाउ व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस गाय? इज दिस गाय सैम्यूल नेचुरल और नॉट? देखें, अगर मैं सैम्यूल की बात करूं, सो द वे, यस एज अ न्यूबी कोई भी बंदा ग्रो करता है, वेदर वो इलीट हो या फिर एवरेज जेनेटिक्स का हो. But the way he is literally progressing, especially when he doesn't know how much he lifts, he doesn't know how much calories he eats, he doesn't know how much protein he eats. एक थोड़े टाइम बाद आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग भी चाहिए. आपको अपने न्यूट्रिशन में, आपको अपनी सप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी एडवांसमेंट या उसमें समझे कि ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है. बट ही स्टिल प्रोग्रेसेस. चलें, अगर आप इसको कह दें कि ठीक है, आइडियली ये सारी की सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, although the logic doesn't make any sense. He has also competed in a number of shows, और वहां पे अगर आप इनकी कंडीशनिंग देखें तो इस कंडीशनिंग को देख के इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग जो कि लाइक बियॉन्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ इवन मेंस फिजिक शोज. इन एडिशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स इन अफ्रीका, इन सब चीजों के साथ आई पर्सनली थिंक दैट ही इज जस्ट अ फेक नैडी. You may give him the benefit of doubt कि yes, he is 1 in a billion genetics. So उस हिसाब से you'll also have to give the benefit of doubt to Simeon Panda, to Ulysses, to Kai Green, जिन्होंने कभी accept नहीं करा कि he's on anabolics. Maybe as per the benefit of doubt, all those guys are also natural. In fact,
आप ये भी कह सकते हो कि ऑल अफ्रीकन बॉडी बिल्डर्स दे आर बिल्ड डिफरेंट, दे ऑल आर लाइक एलिट्स, दे आर लाइक नेचुरल मसल मॉन्स्टर्स। तो फिर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट वहां पे भी देना पड़ेगा। अगेन दैट इज लाइक माई पर्सनल ओपिनियन, जरूरी नहीं आप इससे इत्तेफाक करें। एंड व्हाट डू यू गाइज थिंक ऑफ सैम्यूल? Let me know in the comments. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.